वेलकम बैक टू दैट डेटा नर्ड्स। आज हम मेटा टैग्ड एक मीडियम क्वेश्चन कर रहे हैं स्ट्रैटा स्क्रैच पे। इस क्वेश्चन का नाम है टॉप बुक्स बाय चेकआउट ड्यूरेशन। लेट्स रीड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ट्रैक्स बुक सर्कुलेशन टू अंडरस्टैंड which titles generate the most value through patron engagement. The library defines a book's lifetime value as the total number of days across all checkout periods for all copies of that book. Calculate each book's lifetime value by summing the number of days between the checkout date and the return date for all completed checkouts. Only include books that have more than 10 physical copies in the library's collection. Exclude any checkout where a book hasn't been returned yet. Return books ranked in the top 3 by lifetime value. If the books are tied, they receive the same rank with no gaps in ranking. Example 1123 rather than 1134. Include all books ranked first, second, or third. Output the book title, number of copies, and the lifetime value in days. हमारे पास दो टेबल गिवन है, लाइब्रेरी बुक्स और लाइब्रेरी चेकआउट. लाइब्रेरी बुक्स हैज 4 कॉलम्स: book ID, title, author, and num copies. And library checkout again has 4 columns: checkout ID, book ID, checkout date, and return date. पहले तो हमको सीधा साधा दिख रहा है कि इन दोनों टेबल्स को हमारे को ज्वाइन करना पड़ेगा ऑन द बुक आईडी कॉलम. बुक आईडी पे एक बार हम ज्वाइन कर देंगे तो फिर हमें ये भी डालना पड़ेगा कि वेयर द लाइब्रेरी की अवेलेबिलिटी जो है, लाइब्रेरी की नम कॉपीज जो हैं, LBE की जो नम कॉपीज हैं वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए. और LC में रिटर्न डेट जो है वो नॉट नल होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि more than 10 physical copies in the library's collection and exclude any checkouts where a book hasn't been returned yet. ठीक है, फिर हमारे को एक सिटी और लगेगी जिसमें हम रैंक लगाएंगे, बट इसमें याद रहे कि ये पूछ रहा है 1123 करना है, ना कि 1134. अगर हम रैंक कर देंगे, सिर्फ रैंक कर देंगे तो 1134 हो जाएगा. अगर हम डेंस रैंक करेंगे तो हमारा 1123 आएगा. दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन अ डेंस रैंक एंड अ रैंक. Dense rank gives you no gaps in ranking, while rank gives you a tie and then a gap in a ranking. So if there's a tie, then it gives 1 1, it skips the 2, then it goes to 3. So the next rank that it gives is 3. If there was a tie in 3 as well, then it would have given you 3 3. It would have skipped 4, then gone to 5 directly. However, if there is a tie for dense rank, it doesn't give you it gives you the tie, but it goes to 2 next and then doesn't jump directly to 3. So therefore dense rank इसमें यूज करना पड़ेगा. और फिर क्योंकि हमने फाइनल में हम क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बुक्स दैट आर रैंक्ड इन द टॉप 3 बाय लाइफ टाइम वैल्यू. So we'll have to return the top 3 books where rank is less than equal to 3. Got it? You're good? All right. तो टू फाइंड लिख लेते हैं इसका. टू फाइंड क्या है? रिटर्न बुक्स वेयर रैंक इज लेस देन इक्वल टू 3 बाय लाइफ टाइम वैल्यू. हमारे पास गिवन क्या क्या है? 2 टेबल्स गिवन है. इसमें हमारे पास पहली टेबल जो है वो है लाइब्रेरी चेकआउट्स की, लाइब्रेरी बुक्स की. इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं. book ID, title, author, num copies. यूज एंड फिल्टर इसको इग्नोर. इसको हमारे को शायद डालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे को एक्सपेक्टेड आउटपुट यही होगा. तो दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट मेन कॉलम. ज्वाइन की.
ठीक है। अभी लाइब्रेरी बुक्स तो ये हो गया, लाइब्रेरी चेकआउट्स। इसमें हमारे को डालना है चेकआउट आईडी। इसमें अगर अगेन हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, चेकआउट आईडी, बुक आईडी, चेकआउट डेट और रिटर्न डेट। एक मिनट, एक वैल्यू का वैल्यू कैसे आया? By summing the number of days between checkout date and return date for all completed checkouts. Oh, got it. Got it. This lifetime value is not actually a value. It's the number of days between checkout date and return date. Okay. ये भी लिख लेते हैं। Checkout lifetime value is equal to days between checkout date and return date. So effectively date diff of return date comma checkout date. I think अगर मैं इसका सम कर दूंगा और ग्रुप बाय कर दूंगा बुक आईडी तो हो जाएगा। नहीं, ग्रुप बाय हम कर देंगे टाइटल। हम टाइटल चाहिए। ग्रुप बाय टाइटल। पहला तो मैं डाल देता हूँ बेस सीटी डाल देते हैं। बेस सीटी एज सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी बुक्स LB join library checkouts LC on LB dot book ID is equal to LC dot book ID। अब हमारे को क्या क्या चाहिए? टाइटल चाहिए, हमारे को नम कॉपीज चाहिए। नम कॉपीज तो ऐसे ही उठ के आ रहा है बिलीव, क्योंकि मिडनाइट लाइब्रेरी की 15 कॉपी, मिडनाइट लाइब्रेरी की 15 कॉपी, प्रोजेक्ट हिल मेरी की 12, प्रोजेक्ट हिल मेरी की 12। वो उठ के ऐसे ही आ रहे हैं, सम करने की जरूरत नहीं है। डेट डिफ डेट डिफ करना है मेरे को, रिटर्न डेट और चेकआउट डेट पर मेरे को इसको सम करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल बार जा सकता है बाहर। तो मैं इसको ग्रुप बाय कर दूंगा 1, पर इसमें हमारे को एक वेयर भी डालना है। वेयर में हमको डालना है 2 कंडीशंस यहाँ पे। एक तो रिटर्न डेट इज नॉट नल and num copies is greater than plus। ग्रेटर देन ही लिखा है ना, मोर देन लिखा है। ठीक है, तो इसको स्ट्रिक्टली मोर देन लेके ही चलना पड़ेगा। अगर मोर देन और सेम लिखा होता 10 तो फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू डाल देते, बट अभी क्योंकि मोर देन लिखा है तो इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10 करके लेके चलना पड़ेगा। ये ना अगर तुम पूछ लेते हो ना क्वेश्चन, तो ये इंटरव्यू के माइंड में अच्छा प्ले करता है, तो ये पूछ लेना जब तुम इंटरव्यू दोगे कि should I say it is more than 10 or should I say that it is more than equal to 10। अब दूसरी सीटी डाल देते हैं, रैंक सीटी एज सेलेक्ट टाइटल नम कॉपीज। अच्छा, इसको वो नहीं दिया ना, एज लाइफ टाइम वैल्यू। डेंस रैंक डाल देते हैं एक
लाइफ टाइम वैल्यू पे डाल देते हैं ओवर ऑर्डर बाय लाइफ टाइम वैल्यू डेस्क as RNK from CTE, sorry, base CTE. अब कुछ नहीं, अब तो डायरेक्ट है टाइटल num copies lifetime value from rank CTE where RNK is less than equal to 3. तो हमारे पास 15 आ गया, 12 आ गया, 11 आ गया, 14 आ गया, 13 आ गया. हमारे पास एक एजुकेटेड भी आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टर स्क्रैच सिर्फ फर्स्ट 5 दिखाता है. तो हमारे पास एक एजुकेटेड भी आ रही है. तो ये सारी 6 बुक्स जो हैं, मिडनाइट लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट हेल मेरी, सेवन हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो, थर्सडे मर्डर क्लब, लेसन्स इन केमिस्ट्री और एजुकेटेड आर द मोस्ट बुक्स जो कि अवेलेबल भी होती हैं, पर इनकी सबसे हाईएस्ट लाइफ टाइम वैल्यू होती है. सबसे ज़्यादा दिनों तक लोग इसको चेकआउट करके रखते हैं. Which makes sense, right? Coming from the book world, it does make sense. Uh, let's just hit solved. We have solved it, successfully accepted. Great. So this is the question. This is the strata scratch question that we just now solved. It was asked by Meta. It has been asked by Spotify, Audible, and Meta. So this will go into our Meta playlist. And it has been asked for data engineer, data scientist, BI analyst, and data analyst roles. So it has quite often been asked. So if you like this video, press the like button, press the bell icon, and press the subscribe icon. Um, I will keep creating such questions as and when I have time. All right, thank you.